Hello friends, welcome to the channel Life Science Enrichment. So in the last part we did the PYQs till 47 and now we will start the second part और इसमें हम लोग start करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से लास्ट वीडियो में हम लोग 47 तक कर चुके थे. So next coming to the question number 48. Here the same pattern, the question is given in the both the language. So go according to your preference. The 48 question number is secondary structure of protein can be assessed by. प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का आंकलन किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, थर्ड कोलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा एंड फोर्थ वन इज अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. So here answer is the circular dichroism spectroscopy because most common technique जो हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के डिटरमाइन करने के लिए सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं. इससे हम लोग मेजर करते हैं लाइक जैसे कि अल्फा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. So it measures the differential absorption of the left and the right circular polarized light का. That's why we use the circular dichroism spectroscopy here. And electron microscopy is this technique is also used for the to know the shape and size of the protein, but here they ask the specific, so we will go for the option number A. And column chromatography, that is used for the separations of the protein, that is based upon the charge, but they ask here the structure, not the separation. And thin layer chromatography, this is again for the separation of the small molecules like the amino acids. So here the correct answer is option number A. Coming to next question. Scientific name Malus malus, it is an example of. वैज्ञानिक नाम मैलस मैलस एक उदाहरण है. यानी कि हमें एक साइंटिफिक नेम दिया गया है दैट इज द मैलस मैलस, तो हमें बताना है ये किस चीज का एग्जाम्पल है. ऑटोनिम है कि टोटोनिम, सिनोनिम और होमोनिम. So here we know genus and species both are same, so that is the example of the tautonym. Next question. Monosonic is. तो ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये हमें बताना है. एंड हमारा हैप्लॉइड कंडीशन होता है. सो मोनोसोमिक इज 2n-1. The answer is option number B. And here the one extra chromosome is added, so this is an example of the trisomy 2n+1. And option number D is 2n+2. Here the two extra chromosome, this is the example of the tetrasomy. And our answer is option number B. So this is an example of monosomy where the we can give the example of monosomy, that is the datura example. इसमें one chromosome missing होता है. The next question is, a woman possesses two dominant traits, each resulting from a mutation in a different gene. Cataracts inherited from her father and polydactyly inherited from her mother. Her husband doesn't have either trait. Given that the genes for these two traits are located 15 centimeter apart for the same chromosome, what is the probability that their first child will inherit both the cataracts and polydactyly? So इसमें हमें क्या करना है, जो उनके फर्स्ट किड्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बोथ ट्रेट्स को inherit करने की. So first of all, for this question we have to identify the parental genotypes. After that, gametes. Then we have to calculate the recombinant frequency, and then we will calculate the probability of the child inheriting both the traits. So here this is not possible, so we will go for the answer. Answer is the option B is given. We will make the another short video for the solution of this question. Okay, coming to next question. The clamp connections are characteristically formed during the cell division in which of the following?
जो कोशिका विभाजन के समय क्लैंप कनेक्शन विशेषता निम्न में से किसमें बनता है? ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है बेसिडियोमाइसिटीज का कि यहाँ पे क्लैंप कनेक्शन बनते हैं. दिस इज ओनली द ऑप्शन हियर द करेक्ट वन, बेसिडोमाइसिटीज, बिकॉज ये फंगाई है जिसमें क्लैंप कनेक्शंस बनते हैं. बाकी में किसी में भी इस तरह के क्लैंप कनेक्शन नहीं बनते हैं. तो दिस इज द आंसर हियर. एंड जो एस्कोमाइसिटीज होता है इसमें सेप्टेट माइसिलियम बनता है. ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली. एंड काइट्रिडियोमाइसिटीज ये तो प्रिमिटिव फंगाई है. तो दैट्स वाई आवर आंसर इज बेसिडोमाइसिटीज हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड? निम्नलिखित में से कौन बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड कहलाता है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यूटियानिडस एविस. इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड. ऑप्शन नंबर 1 इज स्पायरेंथिस स्पायरलिस. इसको मोस्ट कॉमनली हम लोग बोलते हैं लेडी ट्रेसेस. एंड ऑर्किड मोरियो. ऑर्किड मोरियो का कॉमन नेम होता है ग्रीन विंग ऑर्किड. एंड लिस्टीरिया ओवारा इसका नाम होता है कॉमन नेम ट्यूब ब्लेड. So here the option number D is correct for the bird's nest orchid. Coming to question number 54. Arrange the following families according to the तख्ताजैन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. सो हमें यहाँ पे 4 फैमिलीज दी गई है, एक्थेंथिएसी, एपोसाइनेसी, रूबिएसी, सोलोनेसी. तो इन चारों को हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस तख्ताजैन क्लासिफिकेशन. तो हमें यहाँ पे ये पता करना होगा सबसे जो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है और सबसे एडवांस फैमिली कौन सी है. तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो अकेंथिएसी फैमिली है, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस फैमिली अमंग दीज ऑल फैमिलीज. अकेंथिएसी फैमिली वो होती है जिसमें सारे ऑर्नामेंट प्लांट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. तो दिस इज़ द मोस्ट एडवांस फैमिली हियर. एंड द मोस्ट प्रिमिटिव इज़ द रूबिएसी फैमिली. रूबिएसी फैमिली में मोस्टली प्रिमिटिव टाइप ऑफ द प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉफ़ी वगैरह. तो अकॉर्डिंग टू दैट आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हियर द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली इज द रूबिएसी. नेक्स्ट इज द एपोसाइनेसी. एपोसाइनेसी फैमिलीज में मोस्टली मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूड होते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज द सोलोनेसी. सोलोनेसी फैमिली सबको पता है जो पोटैटो फैमिली होती है. दिस इज सोलोनेसी फैमिली. एंड देन द अकेंथिएसी. सो दिस इज द मोस्ट एडवांस. एंड रूबिएसी, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली. सो अकॉर्डिंग टू द 3 in the first, 1 in the last, so this is only the option. So our option number C is correct answer here. Coming to next question. Arrange the following steps in the correct sequence. यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. So option number 1 is given Hutchinson system of the classification, then APD Candolle system of the classification. Third one is a Bentham and Hooker system of the classification. Engler and Prandtl system of the classification. इसमें हमें ये बताना है कि सबसे पहले हमारी कौन से टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन आई थी और कौन सी लास्ट में आई थी. अकॉर्डिंग टू दैट हमें इसको अरेंज करना है. तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. 55 का ऑप्शन नंबर सी. सबसे पहले आई थी एपीडी कैंडोले सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो कि आया था अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी कि 1813 में. नेक्स्ट आता है हमारा बेंथम एंड द हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था इन लोगों ने 1862 में. आफ्टर दैट हमारा आ जाता है एंगलर एंड द प्रैंटल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन,
जो कि दिया गया था 1884 के अराउंड। एंड देन लास्ट वन आ जाता है हमारा हचिनसन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन इन द 1926। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीटम रिजेंबल्स द एंजियोस्पर्म इन हैविंग। नीटम एंजियोस्पर्म्स या आवर्ती बीजी पौधों में से समानता रखता है। तो इसमें क्या है, नीटम हमें दिया गया है एक प्लांट जो कि जिसकी रिजेम्बलेंस होती है एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक से। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें एंजियोस्पर्म्स के हैं और कौन से नहीं हैं वो हमें बताना है। इस बेस पे हमें यहाँ पे आंसर चूज करना है। तो हमें बताया नीटम एक इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। जो फर्स्ट वन ऑप्शन इज गिवन, शूट अपेसिस विद डिस्टिंक्ट ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ये इसका कैरेक्टर होता है। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी हमें मिलता है। ये बेसिकली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ये हमें नीटम में मिलता है बिकॉज इसमें आर्किगोनिया अब्सेंट होती है और ये डबल फर्टिलाइजेशन शो करता है। So this is the also the correct, and dicotyledon embryo. This is the famous. This is a dicotyledon embryo एंजियोस्पर्म का फीचर है, तो ये हमें नीटम में भी मिलता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द जाइगोट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नीटम मीन्स जिम्नोस्पर्म फैमिली बट नॉट ऑफ द एंजियोस्पर्म, बिकॉज एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सेलुलर डिवीजन होता है। So D is incorrect in respect of the angiosperm. So the option number C is the correct answer here, because the three statement A, B and C all are the correct in respect of the angiosperm, and these are present in the Needham showing all these characteristics. Needham also shows the D option, but this is not in respect of the angiosperm, because angiosperm में हमें सेलुलर डिवीजन मिलता है। सो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी। हिंदी में भिन्न ट्यूनिका और कॉर्पस युक्त प्रोर होता है जो कि नीटम में प्रेजेंट होता है। मादा युग्मोद्भिद के टेट्रास्पोरिक विकास में, ये भी करेक्ट है। द्विबीजपत्रीय भ्रूण होता है, ये भी करेक्ट है। युग्मनज में स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन में, यहाँ पे केंद्रीय नहीं होता है, यहाँ पे सेलुलर होता है, यानी कि कोशिका की फॉर्म में होता है। So the answer for the 56 is option number C. Coming to next question. Which of the following terms describe the shape of the plant leaves? पौधों की पत्तियों के आकार को निम्नलिखित में से कौन से शब्द वर्णन करते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है बेसिकली। फर्स्ट वन ऑप्शन इज असाइकुलर, ओब्लेंसियोलेट, ओवेट, एंटायर, सीरेट। साइकुलर जो होते हैं सुई जैसे, जैसे कि इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, सुई जैसे आकार की जो लीव्स होती हैं जो कि हमें मोस्टली कोनिफेरस में मिलती हैं, तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द लीफ। ओब्लेंसियोलेट, आयताकार, सो दिस इज अगेन द अदर टाइप ऑफ द लीव्स। ओवेट, अंडाकार ओवल शेप की जो लीव्स होती हैं, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द लीफ। But the option number D, entire, and E is the serrate. Entire, this is not the type of the leaf. This is represent the edge of the leaf. And serrate also, this is also represents the margin of the leaf. So entire and serrate, these both are the uh, margin of the leaves. Serrate represents the teeth like of the structures at the margin of the, जो लीफ का मार्जिन होता है उस पर जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर टाइप से के, तो ये जिसको हम बोलते हैं सीरेट टाइप ऑफ द लीफ। बट दिस इज नॉट द टाइप ऑफ द लीफ, दिस रिप्रेजेंट्स द एजेस, बट ए बी एंड सी दिस रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द लीव्स। लीफ की जो शेप है उसको डिफाइन करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। For the question number 57, the option number C is the correct answer. Coming to next question. Which of the following center of the origin of the cultivated plant was identified by Wavilo as having the greatest diversity in the crop species? So हमारा इसका आंसर हो जाएगा नियर ईस्टर्न सेंटर। वेविलो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने
एक थ्योरी दी थी सेंटर ऑफ ओरिजिन की, उसके बेस पर उन्होंने कंसिडर किया था कि कौन सा रीजन एट द वर्ल्ड लेवल है जिस पे सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। तो उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने पाया कि जो ईस्टर्न सेंटर होता है, बिकॉज यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा अभी इंडिया ईस्टर्न सेंटर जो कि मॉडर्न डे में अभी हमारा तुर्की, ईरान और उसके एडजेसेंट वाला एरिया है, तो उन्होंने वहाँ पे पाया था कि यहाँ पे वीट, बार्ले और लेग्यूम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने इसको कंसिडर किया था कि हाईली जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। और मेडिटेरेनियन सेंटर को इन्होंने कंसिडर किया था कि यहाँ पे मोस्टली जैसे कि ऑलिव्स वगैरह मिलते हैं। एंड इंडो मलाय सेंटर जैसे कि इंडो चाइना और मलाया आर्किपेलागो लाइक द इंडोनेशिया वगैरह है, इनको इन्होंने कंसिडर किया था कि यहाँ पे भी जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है बट नॉट मोर देन द ईस्टर्न सेंटर। एंड ऐसे ही इन्होंने साउथ अमेरिका में पाया था कि यहाँ पे पोटैटो एंड कॉर्न्स वगैरह मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेबिलो थ्योरी दिस इज द नियर ईस्टर्न सेंटर इज द मोस्ट डाइवर्स रीजन, so the option number B is correct here. Coming to the next question, question number 59. Arrange the following steps in the correct sequences. निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमें डिस्कवरी दी है डिफरेंट टाइप्स की, इनको हमें अरेंज करना है। So first one is given discovery of the anther culture by the Guha and Maheshwari. Discovery of polyembryony by the Leeuwenhoek. Discovery of the syngamy in angiosperm by Strasburger. Discovery of the double fertilization in the angiosperm by the Navaschin. हिंदी में गुहा एंड महेश्वरी के द्वारा प्राकोष संवर्धन की खोज, ल्यूवेनहोक के द्वारा बहुभ्रूणता की खोज, स्ट्रैसबर्गर के द्वारा आवर्त बीजों में युग्मक संलयन की खोज, नमस्चिन के द्वारा आवर्त बीजों से द्वितीयक निषेचन की खोज। तो किस किस ने कौन से ईयर में ये वाली डिस्कवरीज की हैं उसको उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज सबसे पहले ये दी गई थी डिस्कवरी ऑफ द पोलीएम्ब्रियोनी बाय द ल्यूवेनहोक, दिस इज गिवन इन द 1719। आफ्टर दैट आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ सिनगेमी इन एंजियोस्पर्म बाय द स्ट्रेसबर्गर, दैट इज इन 1884। आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म बाय द नवास्चिन, दैट इज गिवन इन द 1898 में। एंड लास्ट वन डिस्कवरी ऑफ द एंथर कल्चर बाय द गुहा एंड महेश्वरी, इन लोगों ने की थी 1964 में। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Coming to next question. Okay. If the standard deviation of a data set is 4 and the mean is 20, what is the coefficient of variation? Coefficient of variation क्वेश्चन हमारा पहले भी आया है, मतलब सेम सेट में इन्होंने रिपीट किया है क्वेश्चन को, बट यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन मांगा है। वहाँ पे हमसे फॉर्मूला पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। तो हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, दिस इज द मेजर ऑफ द वेरिएंस एंड वी नो दिस इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन एज अ परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4 एंड मीन हमें दे रखा है 20, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी 4 divided by 20 into 100 as a percentage. So our option number B is the correct answer. सिंपल फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमें दो सूची दी गई है, सूची 1 एंड सूची 2। इनको हमें सुमेलित करना है, यानी कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है सिट्रस कैंकर, ये किससे हमें होता है, सॉरी ये सिट्रस कैंकर ये किससे होता है प्लांट्स में, दिस इज फ्रॉम द जेंथोमोनास सिट्राई। सिट्रस कैंकर जो होता है ये होता है जेंथोमोनास सिट्राई से, दिस इज अ टाइप ऑफ द
बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा हमारा किससे होता है? दिस इज स्क्लीरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। बी के लिए हो जाएगा 4। वेन क्लियरिंग ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा, तो इसके लिए होता है येलो मोज़ेक वायरस, यानी कि ये मैच हो जाएगा हमारा बी के साथ, हिबिस्कस येलो वेन मोज़ेक वायरस। और रस्ट ऑफ लिंसिड ये हो जाएगा मेलानोस्पोरा लिनी। ये एक तरह का फंगाई होता है जो इसको लिंसिड को अफेक्ट करता है। दिस इज द मेलानोफोरा लिनाई। सो हियर आवर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज डी में ए को 3 से मैच किया गया है। सिट्राई कैंकर के लिए जेंथोमोनास सिट्राई, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा के लिए स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, एंड फॉर द vein clearing of bhindi is the yellow mosaic virus, and for the rest of the linseed melanospora linni. So for the question number 61, the correct answer is option number D. हिंदी में भी सेम ही नेम है, ये एक बार देख लीजिए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें मैच करना है यहाँ पे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। So here the classification is given and according to their scientist we have to match here. फर्स्ट वन हमारा दे रखा है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये अच्छा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है, इन्होंने ये कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हैं कि ये वाले जो क्वालिफिकेशंस थे लिस्ट ए के जो क्लासिफिकेशंस थे, ये लिस्ट बी की कौन सी क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं, ये हमें बताना है। सो हमारा जो फर्स्ट वन है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ये हमारा किस पे बेस्ड था? ये था हमारा इट इज बेस्ड अपॉन द एपिडिक एंडोले सिस्टम। सो फॉर द ए के लिए हमारा मैच हो जाएगा 1 से। क्लासिफिकेशन of Bentham and Hooker is based upon the classification of the epidic condyles. नेक्स्ट आ जाता है एंगलर एंड प्रांटल। ये हमारा था क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइक्लर सिस्टम, ये आइक्लर के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है हचिंसन क्लासिफिकेशन। हचिंसन क्लासिफिकेशन बेस्ड था हमारा बेसी सिस्टम पे, बेसी सिस्टम दैट इज द बी, यानी कि 2। For the Hutchinson classification system is based on the Bassi system, and for the Takhtajan that is very similar to the Cornquist. D के लिए हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमें मैच करना था। ये तो सबको पता होगा आई थिंक, बेंथम एंड हुकर एपिडिक एंडोले सिस्टम। उसके बाद आ जाता है एंगलर एंड प्रांटल। इन्होंने क्या किया था, जो आइक्लर के सिस्टम का, आइक्लर ने क्या किया था, मोनोकोट और डाइकोट के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था। तो एंगलर और प्रांटल और आइक्लर दोनों का सिमिलर था। उसके बाद आ जाते हैं हचिंसन। हचिंसन ने क्या किया था, प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाई किया था। एंड तख्ताजान दिस इज अगेन अ मोस्ट कॉमन। इन्होंने फाइलोजेनेटिक जो कैरेक्टर्स थे उनके बेस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, और दिस इज द मोस्ट वाइडली accepted classification, that is the तख्ताजान क्लासिफिकेशन। इन्होंने इसमें जैसे कि प्लांट्स का उनका ओरिजिन क्या है, हायरार्की क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी, प्रिमिटिव, एडवांस, इन्होंने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है। सो दिस इज द मोस्ट widely used classification in the plants. Coming to next question.
स्पीसीज का दैट इज डिपेंड अपॉन द बहु आनुवांशिक एवं वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे दोनों फैक्टर काम करते हैं, जेनेटिक भी एंड इन्वायरमेंट भी फॉर अ ट्रेट. एंड नेक्स्ट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द फिशर द वेरिएंस ऑफ अ क्वांटिटेटिव ट्रेट, यानी कि जो टोटल वेरिएंस होता है किसी भी ट्रेट का, क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है, कैन बी पार्टीशन इनटू जेनेटिक वेरिएंस एंड इन्वायरमेंटल वेरिएंस. दिस इज अगेन करेक्ट. सो यहाँ पे जो टोटल वेरिएंस होता है किसी भी ट्रेट का, उसको हम स्टैटिस्टिकली पार्टीशन कर सकते हैं, यानी कि उन दोनों का टोटल होता है वो जेनेटिक वेरिएंस का वीजी का एंड इन्वायरमेंटल वेरिएंस का वी का. सो स्टेटमेंट 2 भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. 1 ऑल्सो करेक्ट, 2 ऑल्सो करेक्ट. फिशर ने थर्ड हमारा ऑप्शन दिया गया है. थर्ड स्टेटमेंट, फिशर क्लेम दैट आ क्वांटिटेटिव ट्रेट इज सोलली डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर. सोलली इन्वायरमेंटल फैक्टर तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर भी काम करेगा. सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग. बिकॉज इस थ्योरी में क्या होता है, दोनों फैक्टर काम करते हैं, जेनेटिक भी एंड इन्वायरमेंट भी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ओनली इन्वायरमेंटल फैक्टर दिया है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस इट इज अ ट्रेट ऑफ the total phenotypic variance of a trait is always equal to the genetic variance. ऑलवेज नहीं होगा, और यहाँ पे ये ओनली जेनेटिक वेरिएंस को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है. हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएंस को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे. इन्वायरमेंटल प्लस जेनेटिक वेरिएंस दैट इज इक्वल्स टू टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस. और ये जो इन्होंने कंडीशन दी है कि जो हमारा टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस है वो जेनेटिक वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएंस जो है वो जीरो हो जाए, जो कि रेयर है. रियलिटी में दिस इज नॉट पॉसिबल. सो बोथ द फैक्टर्स शुड बी इंक्लूड हियर. सो द स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 बोथ आर wrong. Only the statement 1 and 2 are correct. So our answer will be option number D. So हिंदी के लिए भी इन्होंने यहाँ पे वही कि आनुवंशिक भिन्नता एवं वातावरणीय भिन्नता हम दोनों को कंसिडर करेंगे, तभी हमारी पॉलीजेनेटिक थ्योरी जो है वही वो करेक्ट हो पाएगी. लेकिन इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में ओनली वातावरणीय कारक का यूज़ किया है एंड फोर्थ में आनुवंशिक भिन्नता. दोनों को मिला के ही हमारा टोटल आएगा. तो both these statements are wrong, so our answer will be option number D. So for the 64, the option number D is the correct answer. Coming to the next question, again the matching options are given here. So यहाँ पर भी हमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है. मैच द लिस्ट 1 with the list 2. यहाँ पे हमें प्लांट्स के नेम दिए गए हैं और उनकी फैमिली को मेंशन किया गया है, तो प्लांट्स को उनकी फैमिली के साथ मेंशन करना है. दिस इज आवर टास्क. So for this, the answer is A. जो पिम्पिनेला एनिसम, यानी कि जो एनस फैमिली है जिसमें सौंफ वगैरह कंसिडर की जाती हैं, तो ये बिलोंग करता है हमारा एपियेसी फैमिली को. नेक्स्ट है ट्रिगोनेला फोइनम ग्रीकम, जो कि फेनुग्रीक फैमिली होती है, यानी कि इसमें मेथी वगैरह जो कंसिडर होती है, तो इसको हम मैच कराते हैं पेपिलियोनेसी फैमिली से. अभी तो इसको हम लोग लार्जली कंसिडर करने लग गए हैं फेनुग्रीक को फैबिएसी फैमिली में, बट यहाँ पे दिया गया है पेपिलियोनेसी, तो पेपिलियोनेसी कंसिडर करेंगे. उसके बाद आ जाता है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस. एम्बलिका ऑफिसिनेलिस मीन्स वो जो होते हैं गूजबेरीज वगैरह, इंडियन गूजबेरी लाइक दी आंवला, तो ये हमारा जाएगा यूफोर्बिएसी फैमिली. सी मैच दी ओ ए सॉरी 1 यूफोर्बिएसी फैमिली, सी को मैच करेंगे यूफोर्बिएसी से. उसके बाद आया हमारा एलिटेरिया कार्डामम, कार्डामोमम, यानी कि इसमें जो ग्रीन इलायची वगैरह होती है ग्रीन कार्डामम, तो ये होती है जिंजिबरेसी फैमिली, यानी जिसमें जिंजर फैमिली जो होती है जिंजिबरेसी. So our option number A is the correct answer for the question number 65. So पिम्पिनेला एनिसम, यानी कि जो सौंफ वाली फैमिली होती है, ये होती है हमारी एपियेसी फैमिली.
Trigonella Phoenum graecum, that is the fenugreek. This will match Papilionaceae. Then the Amblyca officinalis यानी कि आंवला वगैरह, ये मैच होगा हमारा यूफोरबिएसी से। उसके बाद आ जाता है हमारा इलेटेरिया कार्डामम, जो कि ग्रीन इलायची वगैरह होती है जिंजीबेरेसी फैमिली के लिए, यानी कि जो हमारी अदरक वाली फैमिली होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट हमारे 65 से लेके 100 तक हमें करने हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो if you like, and thank you for that. We will meet in the next video.